Welcome to the nursing tricks. Basics are the basics and you can't skip the basics. Today we have to discuss about Alzheimer disease. Definition: it is a chronic progressive degenerative disease of brain. It is most common form of dementia. Alzheimer disease is destroy brain cells. Move to etiology. Exact etiology is unknown. Second is age. Third is family history. Fourth is low socio-economic level and educational level. Fifth is poor access to health care. And last is women is greater than men are affected. Then आता है pathophysiology. Its overproduction of amyloid beta protein is main cause of Alzheimer disease, which produce damage directly or indirectly, producing inflammation and ultimate neural death. Then clinical manifestation. First is memory loss. Second is difficulty performing familiar tasks. Third is problem with language. Fourth is disorientation to time and place. Fifth is a decreased judgment. Sixth is abstract thinking. Seventh is misplaced things. Eighth is change mood or behavior. And last is change in personality. Then आता है diagnostic evaluation. No single test to diagnose. Firstly हम history and physical examination. Then आता है mini mental state examination. The high score is 30. Then neurological examination and CT scan, MRI and MRS. Next is serum level of B6 and B12. We move to management is drug therapy. First is cholinesterase inhibitors. इसमें आता है donepezil, neostigmine. It helps in memory and cognition by cholinergic neurons. Second is antidepressants. It's amitriptyline. Third is antipsychotic, olanzapine, haloperidol. It's decrease the agitation and other behavior problems. Other therapy is moderate exercise, assistant with functional independence, and music therapy. Next is nursing management. Include family member for providing care. Prepare patient for interaction with eye contact and touch. Third is give one sample direction at a time. Use distraction technique to reduce anxiety. Stimulate memory by repeating. Orient with the time, place and person. Assist and provide activity of daily living. Provide assistive devices. Use hearing aids, visual aids if requiring. Maintain articles free environment. Encourage social and community activity. Encourage spiritual resources and provide appropriate level supervision. Hope you enjoy the video. Thanks for watching. Welcome to the nursing tricks neurological disorder. तो आज का टॉपिक है मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन: द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जिसमें कि हमारा 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस में आती हैं ब्रेन में: पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर. इसको याद करने की ट्रिक्स हैं PAD. P for पाया मैटर, A for एरेक्नॉइड मैटर एंड D for ड्यूरा मैटर. इसमें इन्फेक्शन आल्सो स्प्रेड टू द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाता है जो कि ब्रेन में होता है. ठीक है. इसके क्लासिफिकेशन है 4 कैटेगरीज में. देयर इज फर्स्ट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं और वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल, प्रोटोजोअल ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में आते हैं. तो सबसे पहले हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है. इसके पॉजिटिव एजेंट पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि ये मोस्ट कॉमन है और ये 30 ईयर्स
तक के लोगों में ज़्यादा फैलता है। हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि बच्चों में ज़्यादा कोज करता है मेनिंजाइटिस को, जो कि 2 से 5 साल के बीच में है। देन आता है तीसरा निजेरिया मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत कंटेनिजियस होता है और इसमें आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, जो कि 5 से 30 साल के बीच में होता है। मोस्ट डेंजरस एंड सीरियस मेनिंजाइटिस है, ये ड्रॉपलेट से फैलता है और रेस्पिरेटरी एंड एयरवे सिक्रेशंस को ब्लॉक करता है। द मेंटेन ड्रॉपलेट आइसोलेशन, इट कॉजेज रेड पिंक रैशेस प्रेजेंट ऑन द स्किन ड्यू टू। देन आता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसमें भी हमें आइसोलेशन की जरूरत होती है। देन आता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, जिसमें कि वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वायरल मेनिंजाइटिस जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से कॉज होता है, जिसमें एडल्ट में हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट देखते हैं और चिल्ड्रंस में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 देखते हैं। देन आता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस, जो कि वायरल मेनिंजाइटिस का ही पॉजिटिव एजेंट है, जिसमें एंसेफेलाइटिस जो कि फ्लेबी वायरस होता है, जो कि कुलेस मॉस्किटो से फैलता है। फंगल मेनिंजाइटिस जिसमें कि पॉजिटिव एजेंट है क्रिप्टोकोकल नियोफोमस, जो कि मोस्ट कॉमन है, एंड कैंडिडा एल्बिकन्स। देन आता है प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस, अमीबा से फैलता है, जो कि स्प्रेड कैसे होता है नेजल म्यूकोसा सिक्रेशंस ड्यूरिंग स्विमिंग के दौरान नेजल म्यूकोसा के थ्रू ये स्प्रेड होता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है। देन हम मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन नेजोफेरिंग्स, नेजल म्यूकोसा के थ्रू वो हमारे बॉडी में एंटर करता है और वॉल्स को पेनिट्रेट करता है, देन वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर लेता है। देन बैक्टीरिया इन्वेसिव ऑफ CNS, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर लेता है, जो कि जिस ब्लड के थ्रू, देन वो मल्टीप्लाई करता है इन सब एक्नोड स्पेस। तो जो बैक्टीरिया है वो रिलीज करता है साइटोकाइनेज, जो कि हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, जिसका मतलब होता है कि ब्लड का बैरियर होती है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया रिलीज करता है साइटोकाइनेज, जो सेल्स का डिप्लीशन कर देता है, जिसके वो परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि वो पेनिट्रेट कर जाता है और माइग्रेट करता है ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स को। देन लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द सबएक्नोड स्पेस, उसमें से सबएक्नोड स्पेस में से सारे प्रोटीन्स का लीकेज हो जाएगा और सेरेब्रल एडिमा कोज करेगा, जिससे कि हमारे ICP इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन कोज करेगा, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स इंक्रीज ICP, इसमें कि फर्स्ट साइन होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीवियर हेडेक एंड सीजर्स, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसमें फीवर भी आता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड डिजीनेस, कन्फ्यूजन एंड इरिटेशन। अगर मेनिंजिस में डिस्टर्बेंस होगी तो कन्फ्यूजन, इरिटेशन एंड मेनिंजियल इरिटेशन भी होगी। देन आता है जो कि मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस में सिम्टम्स देखे जाते हैं, फोटोफोबिया, कर्निंग साइन, ब्रुजकिन साइंस एंड नक्कल रिजिडिटी। फोटोफोबिया इज फियर इन ब्राइट लाइट। कर्निंग साइंस में क्या करते हैं हम 90 डिग्री में एब्डोमेन, थाई एंड नीज को सुपाइन पोजीशंस में चेक करते हैं, जिसमें कि हम उसकी लेग अपवर्ड एक्सटेंड करते हैं, जिससे स्पाज्म ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, जिसके कर्निंग साइंस का पता चलता है। देन आता है ब्रुजकिन साइंस, जिसमें हम सुपाइन पोजीशंस में फ्लेक्स करेंगे नेक को हेड के साथ साथ। इट में प्रोड्यूस फ्लेक्शन ऑफ बोथ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड नीज, इट्स कॉल्ड ब्रुजकिन साइन। देन आता है नकल रिजिडिटी, इसमें जो नेक है वो स्टिफनेस हो जाती है। इसमें एब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन होता है, जो कि वायरल मेनिंजाइटिस में मोस्ट कॉमन देखा जाता है। सीजर्स कुछ केसेस में होता है, 1/3 केसेस में। डायग्नोसिस में जब भी हम डायग्नोसिस करेंगे तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। देन ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए हेल्पफुल है। CT MRI हमारे डायग्नोस्टिक पर्पस जो डायग्नोस करने के लिए ईजी होता है। देन हम मॉनिटर टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए, फंगस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। देन CSF एनालिसिस करेंगे। CSF एनालिसिस में हम LP प्रोसीजर करेंगे, जो कि लंबर पंचर प्रोसीजर होता है, जिसमें हम पेशेंट को C शेप्ड पोजीशन देंगे एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है
मेनिंजाइटिस का CSF एनालिसिस, जिसमें कि नीडल होती है 22 to 24 कोस यूज़ करते हैं, जो कि लंबर पंचर की प्रोसीजर में हम CSF एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम CSF की रिपोर्ट्स में एलिवेटेड प्रोटीन लेवल देखेंगे जो कि ग्रेटर देन 100 mg/L होगा, जो कि नॉर्मल वैल्यू 15/45 होती है। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल होगा 45 से 60 होता है, जो कि ग्रेटर लेस देन 40 होगा। इसमें WBC काउंट इंक्रीज होंगे। क्लाउडी एंड टर्बिट अपीयरेंस होगा CSF का। कोब वेब अपीयरेंस, जिसमें कि फिब्रिन अपीयरेंस होगा। देन आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जो कि हम ब्लड कल्चर भेजा था, उसमें जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म शो होगा उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक जो देते हैं वो देंगे। बाकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंटीपायरेटिक जैसे एसिटामिनोफेन PCM देंगे। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में हम मैनिटोल देंगे 20%, जो कि हमारा GFR डिक्रीज कर देगी और ICP को डिक्रीज करेगी। देन आता है एंटी कन्वल्सेंस, फिनाइटोइन देंगे। एंड एंटीसीजस में कार्बामेज़ापाइन। एंटीएमेटिक्स में ऑन्डमस्टेरोन फॉर वॉमिटिंग। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जो कि डिक्रीज करेगा इन्फ्लेमेशन को। देन आता है मसल रिलैक्सेंट्स देंगे, जिसमें बैक्लोफेन, जो कि रिड्यूस करता है नेक स्टिफनेस को। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसमें हम 2 एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन प्लस टेजोबैक्टम, जो कि टेजार होता है 4.5, जिसमें पिप्रसिलिन एंड टेजोबैक्टम सोल्ट होता है। एंड सेकेंड इज सेफोटेक्सिन एंड वैंकोमाइसिन, जो कि वैंकोमाइसिन कोज करता है रेडमैन सिंड्रोम। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। देन आता है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में जो कि एंटीबायोटिक के साथ हम एसाइक्लोविर देंगे, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, एंटीवायरल मेडिकेशन है, ठीक है। देन आता है फंगल मेनिंजाइटिस, जिसमें कि एंटीबायोटिक प्लस एम्फोटेरिसिन B देंगे, जो कि एंटी फंगल है, ड्रग ऑफ चॉइस है काला आजार की, जिसमें लेजमेनिया ड्यूटेनम एंड सैंड फ्लाई से फैलता है। इट इज़ अ फोटोसेंसिटिव ड्रग एंड स्टोर इन डार्क प्लेस। एम्फोटेरिसिन B के टाइम इट इज़ अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, जो कि हमारी NS प्लस DNS में मिक्स करके दिया जाता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें गिवन विथ PCM। हाइपोकैलीमिया, जिसमें डिक्रीज पोटेशियम लेवल होता है। देन आता है प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस, जिसमें कि एंटीबायोटिक प्लस मेट्रोनिडाजोल देंगे। देन आते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट में। मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इफ पेशेंट डायग्नोज एज बैक्टीरियल meningitis, patient is in isolation when the culture report positive। एंड प्रिकॉशन हम डिसकंटिन्यू जब करेंगे जब कल्चर रिपोर्ट हमारी नेगेटिव नहीं आती जब तक। मेंटेन हाइड्रेशन लेवल, नॉर्मल सलाइन देंगे। प्रोवाइड कूल एंड नॉन स्टिमुलेंट काम एंड इन्वायरमेंट। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इंजरी एंड OBG वैल्यूज एंड पल्स ऑक्सीमेट्री क्विकली रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए। मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिन वॉल्यूम टू चेक SIADH। SIADH होता है सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। देन ये था हमारा मेनिंजाइटिस। थैंक्स फॉर वाचिंग। Tricks, neurological disorder. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे आज का टॉपिक है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन CVA। डेफिनेशन क्या है? जब स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जब ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन में नहीं जाती है, उसको कहते हैं हम CVA या स्ट्रोक, ठीक है। हमें यहाँ पे जो ब्लूइश पोर्शन है, इसमें हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रखी है। द टिश्यू स्टार्ट्स टू डाई, एनी क्लॉट फॉर्मेशन, एनी फॉरेन बॉडीज कलेक्टेड इधर। अगर यहाँ पे टाइम रहते क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक कहेंगे, जो कि मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो टेम्पररी कॉन्शियसनेस लेवल लॉस हो जाता है, और ये रिजोल्व हो जाता है 24 आवर्स में, ओके। इसे साइलेंट स्ट्रोक भी कहते हैं। अगर मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट्स मिलते हैं तो ये साइलेंट स्ट्रोक कहलाता है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि हमारी डेथ कब हो जाए, क्योंकि ये ब्रेन पे अटैक करता है और
ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो हमारे डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई टू द ब्रेन। ब्रेन में कौन कौन सी सप्लाई करती है। इसमें दो आर्टरी करती हैं, कैरोटिड आर्टरी और वर्टिबल आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जिसमें कि दो आर्टरी आती है, जिसमें इंटरनल आर्टरी और एक्सटर्नल आर्टरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ब्लड सप्लाई ब्रेन मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्रेन में करती है ब्लड सप्लाई, तो वो कौन सी करती है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द कैरोटिड आर्टरी मोस्ट ऑफ द पार्ट सप्लाई टू द ब्रेन, तो इसमें आएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये किस किस को सप्लाई करती है, मेनली फ्रंटल को, पैराइटल को एंड अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल एंड डाइसेफलन को। ठीक है, डाइसेफलन के अंदर आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, देन हम चलते हैं वर्टिबल आर्टरी। वर्टिबल आर्टरी क्या है, सप्लाई मिडल एंड लोअर टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल एंड ब्रेन स्टेम। टेम्पोरल रीजन को, ऑसिपिटल रीजन को एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आते हैं हमारे मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। 80% केसेस हमारे इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं और 20% केसेस हमारे हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। और इस्केमिक स्ट्रोक किस लिए होता है कि ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट की वजह से हमारा इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें कोई प्लेग फॉर्मेशन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या एम्बुलेंस हो जाए। इस्केमिक स्ट्रोक को डिवाइड किया हमने दो टाइप्स में, जिसमें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो कि मोस्ट कॉमन मिलता है और एम्बोलिक स्ट्रोक। ठीक है, तो एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है कि यानी फॉरेन बॉडीज जो आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, तो जो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उस कंडीशन में हम इस एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। तो इसमें इस डायग्राम में हमने दोनों स्ट्रोक को बताया हुआ है कि जैसे इस आर्टरी को हमने बड़ा करके दिखाया है कि इसमें क्या हुआ, यानी प्लेग फॉर्मेशन हो गया, लिपिड का फॉर्मेशन हो गया आर्टरी में, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड वेसल्स का वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसके वजह से ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में नहीं पहुंच पाता और टिश्यूज को, और टिश्यूज का नेक्रोसिस हो जाता है, ब्रेन डेथ लीडिंग कॉज करता है। देन दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर कोई हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया या इलास्टिसिटी लूज कर दी, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगी, उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ये कई जगह होता है, जैसे सबएर्गोनॉइड स्पेस में हो गया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होगा तो इंटर सेरेब्रल हेमरेज कहलाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, अगर कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है या एबनॉर्मल वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उस वजह से हम उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो हम ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस फर्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हम क्या होता है यानी प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ब्लड सप्लाई ब्रेन के तक, उस पार्ट तक नहीं पहुंच पड़ती और उसमें नेक्रोसिस हो जाता है या ब्लूइश डिस्कलेशन, जिसको कि ब्रेन डेथ भी कहते हैं। देन आता है हमारा एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म में होता है एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, उसमें लिपिड फॉर्मेशंस, उसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती, उस वजह से उसको लेग्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डीवीटी। डीवीटी एम्बोलिज्म की वजह से भी हमारा ब्रेन डेथ हो सकती है, सीवियर कॉज हो सकता है। एनी कार्डियक फेलियर एंड डिसफंक्शनिंग ऑफ द हार्ट लीड्स टू ब्रेन डेथ because of lack of blood supply to the brain. Then आता है shock. Shock also cause any blood supply to the brain. Okay. रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे हम, जिसमें कि पहला है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड्स फॉर्मेशंस, एनी प्लेग फॉर्मेशन या लिपिड्स जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। हाइपरलिपिडीमिया मतलब एनी इंक्रीज ऑफ लिपिड्स इन ब्लड वेसल्स। जैसे नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है लेस देन 200 mg/dl। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स दो तरह के होते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो HDL और LDL होते हैं, जिसमें HDL हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू ग्रेटर देन 40 होती है, एंड LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वैल्यू होती है लेस देन 100 mg/dl। मतलब HDL बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, LDL में होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाए
तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ये ऑल्सो रिस्क फैक्टर है सीवीए का। सेकंड है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट आ जाती है, जिसमें कि कोएगुलेशन कम होता है और हेपेटिक मतलब लीवर ज़्यादा काम करता है, जिसमें से इंक्रीज कोलेस्ट्रोजेनेसिस हो जाता है, जिसमें कि लिपिड्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से और ब्लड वेसल्स में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एलडीएल और वीएलडीएल भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि इसमें प्रेगनेंसी मूवमेंट में हमारा मूवमेंट कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, इस वजह से वो डीवीटी कोज करता है। डीवीटी कोज करता है तो इस वजह से वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स में। दैट्स वाई द सीवीए ऑल्सो रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी। देन आता है स्मोकिंग। Smoking also causes cessation of blood vessels because it is the mainly cause of every disease, because it causes the blood vessels of vasoconstriction and vasodilation. They lose the elasticity of blood vessels. Then आता है हमारा oral contraceptive pills। इसमें क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं ओसीपी में, जिसमें हमारा जो लीवर है वो इंक्रीज करता है एलडीएल सिक्रीशन, जिसके भी प्लेक फॉर्मेशन हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। देन आता है आर्टियल एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जिसमें कि हमारा जो हार्ट है वो बार बार तेज तेज काम करता है, हार्ट बीट तेज होती है, जिसमें कि हमारा जो रिदम है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, जिसमें अफेक्ट्स करता है वो पल्मोनरी एंड सेरेब्रल एम्बोलिज्म। मतलब क्या है, जो अब हमारे एट्रियल में या वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जो क्लॉट बनेंगे वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लंग्स में। तो पहले वो बनेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर वो ब्रेन तक गए तो वो कहलाएंगे सेरेब्रल एम्बोलिज्म। अब तक सीवीए का कोई एंटीडोट नहीं आया है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब सेकेंड इज हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि हमारा रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। ब्लड वेसल्स जब रप्चर हो जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाती है, उसको कहते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके भी दो टाइप्स है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज एंड इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। सर्ब एक्नॉइड स्पेस में जब ब्लड सप्लाई रप्चर हो जाती है उसको कहते हैं सर्बक्नॉइड हेमरेज, और इंट्रासेरेब्रल जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर हेमरेज हो जाता है तो उसमें से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहलाता है। इनमें से सर्ब एक्नॉइड हेमरेज मोस्ट कॉमन है, जो मेनली होता है। इसके कॉजेज क्या है, इटियोलॉजी सेरेब्रल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, एनी बल्जिंग ऑफ ब्लड वेसल्स या आर्टरी, अगर कहीं से वो बल्ज आउट हो जाए जिसमें कि ब्लड सप्लाई रप्चर हो जाए, ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसमें क्या कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, उसको कहते हैं एन्यूरिज्म। सीवियर हाइपरटेंशन, अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स में प्रेशर डालेगा और उसकी इलास्टिसिटी को लूज करके उसको रप्चर कर देगा। देन आता है एनी ट्रॉमा। देन लास्ट इज आर्ट्रोवेनस मालफॉर्मेशन, अगर एट्रियम और वेनियस में कोई मालफॉर्मेशन होगी तो उस वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में राइट साइड ब्रेन में स्ट्रोक है तो हमारे वो लेफ्ट साइड में अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो राइट साइड ब्रेन का फंक्शन है वो लेफ्ट साइड बॉडी को देखता है, और लेफ्ट साइड ब्रेन का राइट साइड बॉडी को देखता है। अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होगा तो उसको राइट साइड में अफेक्ट। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसमें होगा ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, इंक्रीज आईसीपी, जो कि नॉर्मल रेंज आईसीपी की कितनी होती है 5 to 15 mm ऑफ एसजी। अगर ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इंक्रीज आईसीपी होगा। डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, हेमीपेरेसिस हाफ साइड वीकनेस या हेमीप्लेजिया। देन क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, जिसमें कंप्लीट एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस हो जाएगा। पैराप्लेजिया बोथ लिम्ब पैरालिसिस, कोमा में भी जा सकता है। एग्नोशिया, लेस स्मेल। देन द क्लासिकल साइन ऑफ स्ट्रोक इज फास्ट, जिसमें एफ फॉर फेस, जिसमें ड्रॉपिंग
ड्रॉपिंग ऑफ फेस दिखेगा, जिसमें हमारा फेस बिल्कुल डाउन सा लगेगा। ए फॉर आर्म वीकनेस, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू होल्ड द आर्म स्ट्रेट टू द बॉडी। अगर हम पेशेंट का आर्म को उठाते हैं तो वो स्ट्रेट टू द बॉडी, जिसमें कि हमारा जो वो है हाथ उसी पोजीशन में दोबारा चला जाता है, जिसमें कि आर्म्स वीकनेस हो जाती है। लेग्स में भी वीकनेस आती है। एस फॉर स्पीच, स्लर्ड स्पीच हो जाती है। ट्रबल टू अंडरस्टैंडिंग। टी फॉर टाइम, टाइम इसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि कहाँ है वो, कौन कितना, मतलब क्या टाइम हुआ है, इस वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अगर ये चीज़ हम उस पेशेंट्स में देखते हैं तो वो स्ट्रोक सस्पेक्टेड होता है। अगर सस्पेक्टेड स्ट्रोक लगता है तो हम हेड सीटी स्कैन कराते हैं। हेड सीटी स्कैन में हमें क्लियर हो जाता है कि वो इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। ट्रीटमेंट के आधार पर हम इस्केमिक स्ट्रोक में एस्पिरिन देंगे, जो कि ब्लड थिनर है। देन आता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, गिव आईवी। टीपीए को हम या तो आईवी देंगे या थ्रो फीमोरल कैथेटराइजेशन के थ्रू देंगे। फीमोरल आर्टरी के थ्रू, कैथेटर के थ्रू हम ब्रेन तक डाल देंगे उसे। देन आता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। यानी क्लॉट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इस्केमिक स्ट्रोक में क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। देन आता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें मेडिकेशन देंगे हम हाइपरटेंशन कम करने के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, और इसमें सर्जरी करेंगे जो कि हम आईसीपी कम करने के लिए। एंटी कन्वल्सन देंगे जो कि सीजर्स को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आईसीपी इंक्रीज होगा तो सीजर्स आने के चांसेस हो जाते हैं। एनाल्जेसिक्स देंगे टू रिड्यूस द पेन। इसमें मैनिटोल्स भी दे सकते हैं, और इसमें हम एप्टोइन भी देंगे एपिलेप्सी के लिए। एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लेग्स, मतलब जो कि प्लेग फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स में हुआ है उसके लिए हम रिमूव करेंगे उनको, अगर कोई है तो। जैसे प्रिवेंशन के लिए हम कैरोटिड एंट्रेक्टमी कर सकते हैं, जिसमें कि हम कैरोटिड आर्टरी में जो कि क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है उसको रिमूव करेंगे। एंड वाइडनिंग ऑफ नैरोड कैरोटिड आर्टरीज, एंजियोप्लास्टी करेंगे, जिसमें कि हमारा जो नैरोड कैरोटिड आर्टरीज है उसको वाइड करेंगे। प्रिवेंट एन्यूरिज्म रप्चरिंग, क्लिपिंग करेंगे। रिमूवर ऑफ मालफॉर्मेशन, बाईपासिंग द प्रोमेलेटिक आर्टरी, अगर कोई रप्चर आर्टरी है उसको हील नहीं कर सकते तो उसको बाईपास कर देंगे, दूसरी नई आर्टरी लगा देंगे। देन आता है की नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या क्या हमें उसमें देखना चाहिए। असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉनिटर आईसीपी, वाइटल साइन, स्पीक स्लोली एंड सिंपल टू द पेशेंट। हमने ओनली सिंपल क्वेश्चंस करने हैं इससे। मॉनिटर फ्लूइड इनपुट एंड आउटपुट हावरली, हम इनटेक आउटपुट चार्टिंग करेंगे। पोजीशनिंग करेंगे ताकि उसकी डिफॉर्मिटी में कोई एब्नॉर्मलिटी ना आए, क्योंकि वह हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया कुछ भी हो सकता है। देन फिजिकल थेरेपी टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, फिजिकल थेरेपी देंगे क्योंकि उसकी जो हाथ पैर है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, इस वजह से उसको फिजिकल थेरेपी देंगे। थैंक्स फॉर Welcome to the वाचिंग। Nursing Tricks Neurological Disorder. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया मीन्स मायो मीन्स मसल्स, एस्थेनिया मीन्स वीकनेस, एंड ग्रेविस मीन्स ग्रेव्स। It is a autoimmune disease that affects the skeletal muscles. इसकी डेफिनेशन देखेंगे। It is a neurological disorder in which antibodies appear against acetylcholine and acetylcholine receptors, which is characterized by muscles weakness. इसमें क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन्स और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज हो जाती है, जैसे कि हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जिसमें हमारा साइनेप्स है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, the axons and the neurotransmitter, the acetylcholine, then it is the acetylcholine receptors, जिसमें कि हमारा जो कि एंटीबॉडीज है इसमें हमारे एंगेज हो जाती है। ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वन न्यूरॉन्स अनदर न्यूरॉन्स, द acetylcholines are not going through, that's why the muscles weakness happen. इसमें इंसिडेंस रेट क्या होता है, इसमें 20 to 40 ईयर्स इन वुमेन्स में होता है एंड 60 to 17 इन मेंस। फंक्शंस क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। देन इसमें क्या होता है कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है पेन रिस्पॉन्स को।
रेगुलेट करता है एंडोक्राइन फंक्शंस को एंड स्लीप को भी मेंटेन करता है। तो हम माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारी मसल्स वीकनेस हो जाती है, किसकी वजह से, जो कि हमारी एंटीबॉडीज जो है एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट हो जाती है। देन हम कॉजेज पढ़ेंगे, अननोन एटियोलॉजी, कुछ भी हो सकता है कॉजेज। देन थाइमस ग्लैंड ट्यूमर, अगर कोई थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर है जिसमें कि वो की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसमें कि हमारी खुद की एंटीबॉडीज हमारे अगेंस्ट हो जाती है। देन आता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ। देन हम पढ़ेंगे कि जो मसल्स अफेक्ट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस वो कौन कौन सी है। आई में क्या आता है, डिप्लोबिया डबल विजन हो जाएगा, और टोसिस, निस्टैग्मस एंड स्ट्रैबिस्मस जो कि क्रॉस आई होती है। जो इसमें अर्ली साइंस क्या होगा हमारा, टोसिस या डिप्लोपिया। तो फर्स्ट अर्ली साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज टोसिस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में। देन फेसेस में होता है पेलनेस, स्पीच में होता है स्लर्ड स्पीच, स्वेलोइंग में डिस्फेजिया, उनका जो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा। रेस्पिरेटरी मसल्स मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो उनमें डिस्निया हो जाएगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन आर्म, लेग एंड नेक मसल्स आल्सो आर अफेक्टेड। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको हम पढ़ेंगे वीकनेस में। वीकनेस में हम वन बाय वन देखेंगे। W मीन्स वीकनेस ऑफ द मसल्स, जिसमें हमारा फेसेस, नेक, आर्म एंड लेग। देन आता है ई फॉर आईलिड ड्रॉपिंग टोसिस, जिसमें हमारा डबल विजन आता है। ए आता है अपीरियंस, जिसमें हमारा स्लीपी अपीरियंस होगा, लिथार्जिक होगा। देन के फॉर कीप चोकिंग एंड गैगिंग ड्यूरिंग फीडिंग, मतलब जब वो खाना खाएगा तो उसमें चोक होने के चांसेस हो सकते हैं और गैग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स करेगा। एन फॉर नो एनर्जी फटीग, मैंने बताया जैसे कि फटीग हो जाएगा, मसल वीकनेस नहीं होगी तो उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा। देन ई फॉर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर डिस्फंक्शन, जिसमें हमारा डिप्लोपिया और निस्टैग्मस आता है। देन आता है एस फॉर स्लर्ड स्पीच, सही से बोल नहीं सकेगा। देन एस फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देन इज ऑल अबाउट वीकनेस, द सिम्टम्स ऑफ द मसल्स अफेक्टिंग ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। ये सिम्टम्स भी हैं और मसल्स जो इफेक्टेड हुई हैं उनके द्वारा जो भी अलग अलग सिम्टम्स है वो शो करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है वीकनेस, द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ द मसल सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज वीकनेस। देन हम इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि द स्टार्टिंग ऑफ द डे द स्लाइटली मसल्स वीकनेस एंड नो फटीग, मतलब जो होता है कि स्टार्टिंग डेज में, मतलब शुरुआती दौर में जो होती है हमारी मसल्स वीकनेस कम होती है पर थकावट नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे वर्सनिंग मसल्स वीकनेस एंड फटीग, मतलब जैसे जैसे दिन खत्म होता है तो हमारी मसल्स जो होते हैं वीकनेस हो जाती हैं और वर्सन हो जाती हैं और फटीगनेस आ जाती है। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, डिटेक्ट करेंगे कौन सी एंटीबॉडीज जो हमारे अगेंस्ट हो रखी, सीटी स्कैन्स, एमआरआई। देन हमारे में ये इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है टेंसिलोन एंडोफॉर्मियन टेस्ट, जिसमें हम कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। जो कि होता है कि हमारा एंडोफॉर्मियम हमारा कोलिनर्जिक ड्रग है, जिसमें कि हम एडल्ट और इन्फेंट का अलग अलग डोज होता है, जिसमें एडमिशन 1 डोज ऑफ एंडोफोनियम, ये आईवी डोज देते हैं। एडल्ट में 1 to 2 mg 1 to 2 mg डोज देंगे। पेशेंट गेट रिलीज सिम्टम्स, अगर पेशेंट में सिम्टम्स रिलीज होते हैं तो वो पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट कहलाएगा, जिसमें माइस्थेनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है। मतलब जो इसमें एंडोफोर्मियम है एक लेवल होता है ब्लड में, अगर उस लेवल से ज़्यादा ये मेडिसिन शो करती है तो उसमें सिम्टम्स शो होते हैं। अब एडल्ट में हम 1 to 2 mg डोज देते हैं और इन्फेंट में 0.2 mg देते हैं। EMG करेंगे, जिसमें हमारा रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ हैंड मसल्स, जो कि इलेक्ट्रिक मायोग्राम होता है, जिसमें हमारी मसल्स एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। देन आता है हम मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फाइसोस्टिग्मिन, पहले नियोस्टिग्मिन था, फाइसोस्टिग्मिन हो गया है। देन आता है पायरोडॉक्सिटिन। देन नेक्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन।
देन आता है नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या करते हैं, हम जो एंटीबॉडीज को फिल्टर करते हैं, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी IgG देते हैं, जिसमें हम अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस क्या क्या कैसे कैसे फॉर प्लाज्मा फेरेसिस या एडमिनिस्ट्रेशन इम्यूनो जी के करते हैं। द प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा होता है रिमूवल होल ब्लड थ्रो ए नीडल इन वन आर्म। एक आर्म से सारा ब्लड निकालेंगे। ब्लड वाया सेल्फ सेपरेटेड, सेल सेपरेटर होगा जिसमें कि हमारा दो चीज होगी, कंपार्टमेंट सेलुलर एंड कंपार्टमेंट प्लाज्म। कंपार्टमेंट सेलुलर में होता है द ए नीडल इंसर्टेड टू अपोजिट आर्म टू रिटर्न द ब्लड। अब कंपार्टमेंट सेलुलर से होते हुए जो ये ब्लड है वो अपोजिट आर्म में चला जाएगा। देन आता है कंपार्टमेंट प्लाज्म। इसमें क्या होता है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग इज रिटर्न टू द पेशेंट ब्लड। मतलब इसमें जो अनडिजायरेबल प्लाज्मा होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंशिएट करके उसको ब्लड में वापस भेज देंगे। Then plasma is generally administered with normal saline RL albumin from frozen plasma. Okay. देन आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम थाइमेक्टमी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, क्योंकि वो गैग रिफ्लेक्स शो करेगा और चॉकिंग भी शो करेगा, इसलिए उसको एस्पिरेशन से बचाना है। प्रोवाइड हेड एलिवेटेड पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग एंड ड्यूरिंग फीडिंग ट्यूब। ब्रेस्ट ट्यूब से भी या कैसे भी फीडिंग दे रहे हैं तो हमें उसको एलिवेट करना है। देन लार्ज ईटिंग मील्स इन मॉर्निंग टाइम, क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम्स में थका नहीं होता है, मसल्स वीकनेस कम होती है, तो उसको मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा खाना देना है। प्रोवाइड थिक डाइट। रेडी सक्शनिंग इक्विपमेंट एट बेड साइड टू मेंटेन एयरवे। अगर वो पेशेंट एस्पिरेट करता है या कुछ भी होता है तो सक्शनिंग इक्विपमेंट बेड साइड रेडी होनी चाहिए। असेस द मसल स्टेटस एंड इंस्ट्रक्ट टू द कंजर्व स्ट्रेंथ। उसकी मसल स्टेटस चेक करेंगे। प्लान फॉर शॉर्ट एक्टिविटीज, शॉर्ट एक्टिविटीज करेंगे। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेस, इन्फेक्शन एंड फटीग। एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे, स्ट्रेस अवॉइड करेंगे। देन असिस्ट क्लाइंट टू एस्टेब्लिश रेगुलर एक्टिविटीज एंड रेस्ट प्रोग्राम। वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज करता है उसी में उसको कंटिन्यू करेंगे। देन आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस। दो बहुत होते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे माइस्थेनिया क्राइसिस। एक्यूट वर्सनिंग कंडीशन, सीवियर फटीग, मसल वीकनेस। मतलब माइस्थेनिया क्राइसिस में क्या होता है कि जिसमें कंडीशंस वर्सनिंग हो जाती है और जो फटीगनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, मसल्स वीकनेस भी ज़्यादा हो जाती है। इसका कॉज है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोग्नोसिस। मतलब हम देन इसमें आता है कॉज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोग्नोसिस, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो, इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस, तो हम उसके लिए टेंसिलोन टेस्ट करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट है इंक्रीज डोज ऑफ एसिटाइल कोलिनर्जिक सब्सटेंस। फाइसोस्टिग्मिन की हम डोज बढ़ा देंगे। ठीक है। देन हमारा आता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है कि ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की ओवरडोज हो गई है तो उसमें क्या करेंगे हम, टेंसिलोन टेस्ट या एंडोफ्रोमियम, जिसमें हम इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स। हम टेंसिलोन से में एंडोफ्रोमियम देके देखेंगे जिससे हमारे सिम्टम्स शो हो जाते हैं, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, ज़्यादा सिम्टम्स शो हो जाते हैं। देन नेगेटिव माइस्थेनिया ग्रेविस, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। देन साइनस एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, एक्सेसिव सलाइवेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, देन डिस्पनिया ड्यू टू ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड विजन। टेंसिलोन टेस्ट से हम डायग्नोज करेंगे इसको। मैनेजमेंट क्या है, विदहोल्ड करेंगे एंटीकोलिनर्जिस एंड प्रोवाइड एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट, जो कि एंटीकोलिनर्जिस का एंटीडोट है। क्या, एट्रोपिन सल्फेट। रेडी ट्रैकियोस्टमी एंड इंटूबेशन ट्रे एट बेड साइड। हम उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा वर्सन कंडीशंस में ना चले जाए, इसलिए हम ट्रैकियोस्टमी और इंटूबेशन का सामान रेडी करेंगे। चारकोट ट्रायड न्यूरोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें आता है डिसरिथमिया, इंटेंशनल ट्रेमर्स, निस्टैग्मस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द नर्सिंग ट्रिक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर।
हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन विच डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें हमारा डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स हो जाती हैं जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। जिसमें वन हेल्दी न्यूरॉन है जो कि बिलो पोर्शन वाला है, जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स फास्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है। देन सेकंड इज अपर वास्ट जिसमें हमारी स्लो हो रही है, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी भी हमारी स्लो हो जाएगी। देन हमारा इंसिडेंस रेट मोस्टली अफेक्टेड होता है वुमेन्स में अंडर द एज बिटवीन 15 to 50 ईयर्स। देन हमारा न्यूरॉन्स के डायग्राम में चलते हैं। इसमें हमारे जो अलग अलग पोर्शंस होते हैं, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव होती है एंड देन इट ट्रांसफर टू द अनदर न्यूरॉन्स। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे अपर मोस्ट इज डेंड्राइट्स जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव्स होती हैं, एंड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, एंड सेल बॉडी होती है। देन इज द एक्सोन होता है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स ट्रांसफर करता है। अब इसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ होती है जो कि हमारे जो नर्व्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो कि प्रोटीन्स एंड फैट्स की बनी होती है। अब इसमें क्या होता है, जो ये माइलिन शीथ होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हेल्प करती है वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स में क्विकली ट्रांसफर के लिए। तो हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे माइलिन शीथ के। माइलिन शीथ के टू फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन द नर्व फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। देन सेकंड इज इट्स अलाउ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू क्विकली फ्रॉम अनदर न्यूरॉन्स। अब ये क्या होता है कि जो माइलिन शीथ की हेल्प से ये वन न्यूरॉन्स से अनदर न्यूरॉन्स तक वेरी क्विकली जाता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस द डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर इन नर्व्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे कि हमने डायग्राम्स में पढ़ा है कि अगर उसमें माइलिन शीथ नहीं होगी तो वो स्लो हो जाएगी तो देन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड मसल्स आर वेरी स्लो। then the muscles activity are very slow. Then he shows the then आता है हमारा एटियोलॉजी। इसमें हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता है कि हमारी जो खुद की एंटीबॉडीज है वो हमारे अगेंस्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे एंटीजन्स होते हैं जो कि हमारे ही बॉडीज के एंटीबॉडीज की तरह दिखते हैं, पर वो एंटीजन होते हैं जो कि हमारी बॉडीज से अगेंस्ट हो जाते हैं। देन आता है वायरल इन्फेक्शन में हर्पीस वायरस होता है जो कि वेरिसेला जोस्टर से होता है। जेनेटिक फैक्टर भी आल्सो पॉजिटिव एजेंट इज देन जेनेटिक फैक्टर आर आल्सो इम्पोर्टेंट। देन प्रेसिपिटेट फैक्टर में हमारे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, फिजिकल इंजरी हो सकती है ब्रेन की, देन इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, एक्सेसिव फटिग और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। देन हम इसके बाद चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। देन हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ड्यू टू इन्फेक्शन ट्रिगर। कोई भी इन्फेक्शन होता है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारे एंटीबॉडीज हमारे अगेंस्ट हो जाती है, तो हमारी जो बॉडीज है ऑटो रिएक्टिव शो करती है, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स, अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जो कि WBC जो कि टी लिम्फोसाइट्स रिएक्टिव हो चुके हैं हमारी बॉडी में। देन एक्टिवेटेड टी सेल्स माइग्रेट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये ब्लड के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर लेता है। देन उसके बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। देन हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। अगर कहीं भी एंटीजन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, तो उसके बीच में रिएक्शन होती है। उसके बाद से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से जो माइलिन रिएक्टिव होता है, TH1/17 सेल्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के टाइम में रिलीज होते हैं। देन वो क्या करते हैं, डैमेज ऑफ माइलिन शीथ। उसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ हमारी डैमेज हो जाती है और स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। स्कार फॉर्मेशन होने से ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस कोज होता है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारा इसमें कोज हो चुका है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, देन क्लिनिकल सिम्टम्स में हमारा अलग अलग होता है। जैसे मोटर फंक्शंस, हमारा जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। जैसे हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कम जाएंगी तो हमारी जो मसल्स एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। जैसे फटीग, मतलब हमारी मसल्स ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगी तो उसमें फटीगनेस आ जाएगी, वीक हो जाएंगी। देन पैरालिसिस भी हो सकता है जो कि डिसेंडिंग पैरालिसिस, मतलब हमारे जो लोअर पोर्शंस में है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। देन लॉस ऑफ विजन, डिप्लोपिया एंड टोसिस, ये अर्ली साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं।
देन आता है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्पीच। देन आता है हमारे सेंसरी सिम्टम्स, जिसमें हमारा पैरेस्थीसिया होता है, जो कि एबनॉर्मल एंड अनप्लेजेंट सेंसेशन लाइक टिंगलिंग एंड प्रिकिंग पेन होता है, जिसमें हमारा नीडल प्रिक पेन फील होता है हमें। देन आता है डिक्रीज परसेप्शन लाइक टेम्परेचर एंड टच, टेम्परेचर कोई फील नहीं होगा, कोई टच करेगा तो फील नहीं होगा। देन लॉस ऑफ ट्रांजिट विजन, अगर सेंसरी नर्व्स है वो अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, उनके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं आएगा तो विजन लॉस हो भी सकता है। देन लैक ऑफ टेस्ट हियरिंग, देन क्रॉनिक न्यूरोट्रोपिक पेन। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेरीमिट साइन, जो कि हमारे मोस्ट कॉमन पेशेंट्स जो कि कंप्लेंट करते हैं लेरीमिट साइंस का, जिसको हम बार्बर चेयर फिनोमेना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट्स जो कि फ्लेक्शन नेक को फ्लेक्स करता है तो हमारे उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सेंसेशन फील होती है, जो कि हमारे एक्सट्रीमिटीज से स्पाइन तक जाती है। लेरीमिट साइन जिसमें पैसिव और एक्टिव नेक फ्लेक्शंस होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल सेंसेशन है वो डाउन बैक जाती है लेग्स की तरफ। देन हमारा आता है सेरेब्रल सिम्टम्स, जिसमें होता है अटैक्सिया, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, देन ट्रेमर्स, स्पासिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। देन सेरेब्रल सिम्टम्स मतलब जो हमारा मिड ब्रेन है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस मेंटेन करता है, उसमें जो सिम्टम्स जो होते हैं वो शो करते हैं, जैसे ट्रिमर्स हो गया। देन हमारा आता है रोम्बर साइन, रोम्बर साइन होता है, रोम्बर टेस्ट करते हैं हम। रोम्बर टेस्ट में क्या होता है कि एक पेशेंट जो कि है स्टैंडिंग पोजीशन में स्टिल खड़ा होता है, अगर वो आइज क्लोज करने के बाद अगर वो गिर जाता है तो वो रोम्बर साइंस पॉजिटिव होता है। तो इस पे इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में रोम्बर साइंस पॉजिटिव मिलता है। दिस इज रोम्बर टेस्ट, जो कि पॉजिटिव होता है जब हमारा पेशेंट्स आइज क्लोज करके बैलेंस नहीं कर पाता, तो वो रोम्बर टेस्ट पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इमोशनल सिम्टम्स की जगह, जो हमारा एंग्जाइटी होती है, जिसमें हमारा मूड डिस्टर्बेंस, यूफोरिया भी हो सकता है, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी भी हो सकता है। देन हम चलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देन सीटी स्कैन से भी पता लगा सकते हैं, एमआरआई से भी, देन सीएसएफ एनालिसिस। ईईजी फाइंडिंग्स अगर हम करेंगे तो एबनॉर्मल आएगा। लंपर पंक्चर हमारा जो है इंडिकेट्स करेगा इंक्रीज गामा ग्लोबुलिन। देन हम आते हैं मैनेजमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट, देन मसल रिलैक्सेंस देंगे जिसमें डायजिपाम, बैक्लोफेन। सेकेंड इज इम्यूनोसप्रेशन, जो कि माइकोफेनोलेट एंड एजेथियोप्रेड देंगे। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम ड्रग्स देंगे प्रेंडिसोलोन, बेथामेथासोन, जो कि हमारा एडिमा रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन आता है हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट, जो जिसमें ड्रग्स यूज होगी एटोमिक्सेटेन। कार्बामेज़ापाइन्स देंगे टू रिड्यूस द पैरेस्थीसिया। देन इम्यूनोथेरेपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है कि हम बीटा इंटरफेरॉन किस लिए यूज करते हैं, तो बीटा इंटरफेरॉन हम यूज करते हैं जो कि हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से भी होता है, तो जो एंटीबॉडीज हमारे अगेंस्ट करती थी, तो बीटा इंटरफेरॉन हेल्प करता है उसको डिसॉल्व करने में और एक्सक्रीट आउट करने में बॉडी से। देन आता है हमारा कोलिनर्जिक्स, कोलिनर्जिक्स में ड्रग्स यूज करेंगे बेथनेकोल, जो कि हमारा रिड्यूस करता है यूरिनरी रिटेंशंस को। देन आता है हमारा सर्जरी, सर्जरी में हम 3 सर्जरी करेंगे, न्यूरोटोमी, राइजोटोमी या कॉर्डोटोमी। इन तीनों में से कोई भी सर्जरी हम कर सकते हैं। न्यूरोटोमी में हम क्या करते हैं, तो द सर्जिकल कटिंग ऑफ नर्व टू प्रोड्यूस सेंसरी लॉस एंड रिलीफ ऑफ पेन। तो जो सेंसरी जो नर्व होती है वो अफेक्टेड होती है, उसको हम सर्जिकल कटिंग कर देंगे जिससे हमारा पेन में रिलीफ होगा। देन है राइजोटोमी, राइजोटोमी में क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें रूट्स होती है स्पाइनल कॉर्ड की, जो नर्व्स रूट्स होती है उसको हम कट कर देते हैं, जो हमारे क्रोनिक बैक पेन को रिलीफ करती है, मसल स्पाज्म को। देन आता है हमारा कॉर्डोटोमी, कॉर्डोटोमी में क्या करते हैं हम, तो कटिंग कर देते हैं नर्व्स की स्पाइनल कॉर्ड की, जो स्पाइनल कॉर्ड्स की नर्व्स होती है उनको हम कट कर देते हैं जिससे हमारे पेन को रिलीफ मिलता है। देन हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इज प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, देन प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, प्लेस ऑन आई पैच ऑन द आई ऑन डिप्लोपिया, मतलब जो हमारा विजन्स में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है, जैसे डिप्लोपिया हो गया, डबल विजन जिसको कहते हैं, उसमें हमारा आई पैच प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। देन मॉनिटर द पेशेंट डेवलप फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, हम उसमें देखेंगे कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आ गई है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड फर्दर मैनेजमेंट करेंगे, जैसे आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आ सकता है। मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ है वो कम होने की वजह से उसको जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो ब्लॉक हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ सकता है, रीनल कैल्कुलाई, अगर मस्कुलर एक्टिविटीज़
मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसका जो कैलकुलस हमारा कैल्शियम है वो हमारा डिपोजियोनस हो जाएगा और रिनल कैलकुला कोज करेगा। प्रेशर अल्सर्स भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पेशेंट बेड पे रहता है तो उसकी वजह से ब्लड शॉट्स भी हो सकते हैं। दैन न्यूट्रिशन थेरेपी में मेगा विटामिन थेरेपी देंगे जिसमें विटामिन B12, विटामिन C और मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइट में हम लो डाइट ग्लूटेन फ्री फूड एंड रो वेजिटेबल्स विद हाई प्रोटीन। एजुकेट करेंगे पेशेंट्स को, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले, सेंसरी इम्पेयरमेंट जैसे हमारा बाथिंग टाइम में जो टेम्परेचर है बाथिंग वाटर का वो चेक करें, अवॉइड हीटिंग पैड। देन प्रमोट रेगुलर एलिमिनेशन बाई ब्लडर एंड बाउल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देन इनिशियल फिजिकल एंड स्पीच थेरेपी, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड फैटिग, स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन, ओवर हीटिंग एंड चिलिंग, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इंस्ट्रक्ट द इंक्रीज फ्लूड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड इनटेक देंगे एंड बैलेंस डाइट खाने को बोलेंगे जिसमें हमारा लो फैट, रफेज, फैट ऑफ हाई इन पोटेशियम, उसको इनकरेज इंडिपेंडेंस देंगे। इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट्स को लो फैट, हाई प्रोटीन एंड हाई पोटेशियम डाइट देंगे जिसमें हमें इनटेक जो कि लिक्विड इनटेक ज़्यादा करना है। वेलकम टू द नर्सिंग ट्रिक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आज का टॉपिक है पार्किंसंस डिजीज। इट इज ए स्लोली प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें कि हमारा डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन होता है। इट इज ए डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का जो कि प्रेजेंट होते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया होता है उसमें एक सब्सटेंशिया नायग्रा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डोपामाइन रिलीज में। ठीक है। देन पार्किंसंस डिजीज को पैरालिसिस एजिटेंस भी कहा जाता है। तो हम डोपामाइन के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डोपामाइन जिसमें इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंडिंग मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट नर्व ऑफ द बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेमोरी में, स्लीप में, मूड में, बिहेवियर एंड कोग्निशन में। देन डोपामाइन को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपना एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। ठीक है। देन हमारा आती है इसकी इटियोलॉजी जिसमें कि हमारा अननोन कॉज भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एजिंग भी कह सकते हैं। देन जेनेटिक्स भी कह सकते हैं कि फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। देन एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसमें कि हमारा हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमेजिन एंड लिथियम आता है। एनी ट्रोमा, स्ट्रोक जिसमें हाइपोक्सिया, ब्रेन में जो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना, उससे भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमारा पार्किंसंस डिजीज कोज हो जाए। देन एंसेफेलाइटिस एंड हाइड्रोसेफेलस। देन हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। क्लासिकल साइन जिसमें कि हमारा ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड पोस्टरल चेंजेस आता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेमर्स। ट्रेमर्स में हमारा होता है पिन रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं जिसमें कि हमारी थंबिंग एंड फिंगर मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। देन रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं जिसमें हमारा जो लिप है, लेग्स एंड ट्रंक अफेक्टेड होते हैं। देन आता है ट्रेमर्स डिक्रीज पर्पसफुल एक्टिविटी एंड होल्ड द ऑब्जेक्ट। अगर हम ट्रेमर्स को डिक्रीज करना है तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट देंगे जैसे स्पंजी बॉल्स हो गई या कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसको वो होल्ड कर सकें। देन आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होता है कि जिसके एक्सट्रीमिटीज है वो स्टिफ हो जाते हैं ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट। अगर वो कम मूवमेंट कर रहा है पैरों की, हाथों की, तो उसकी जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाएगी और स्टिफ हो जाएंगी। देन आता है मसल रिजिडिटी, वही एक्टिविटीज इंटॉलरेंस की वजह से उसकी जो मसल है वो रिजिड हो जाएंगी। माइक्रोग्राफिया जिसमें कि स्मॉल राइटिंग, वो छोटी छोटी राइटिंग्स लिखता है। कोगविल रिजिडिटी। देन हमारा आता है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया में क्या होता है कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होती है जिसमें होता है हमारा एकाइनेसिया और डिस्काइनेसिया जिसमें मास्क लाइक अपीयरेंस होता है फेस का, जिसमें आई ब्लिंकिंग, स्वेलिंग ऑफ सलाइवा, स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इट्स लुक्स लाइक ए मास्क। ओके। देन हमारा आता है पोस्टरल चेंजेस जिसमें कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, वो इम्पेयर्ड हो जाता है जिसमें हमारा सफलिंग एंड प्रोपल्सिव गेट हो जाता है। डिफिकल्टी इन चूइंग होता है एंड स्लर्ड स्पीच हो जाती है।
इसमें एक टॉर्टिकोलिस मूवमेंट होती है जो जो ड्यू टू सर्वाइकल डिस्टोशिया की वजह से होता है। सर्वाइकल डिस्टर्बेंस की वजह से उसको कहते हैं टॉर्टिकोलिस मूवमेंट। देन हमारा आता है डायग्नोसिस। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सीटी एमआरआई फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड एंटी पार्किंसन ड्रग्स जिसमें हम लिवोडोपा एंड कार्बाइडोपा देंगे। देन मैनेजमेंट में हम ड्रग या तो आइदर एक्शन जिसका जो कि डोपामिनर्जिक को ब्लॉक करेगा या इफेक्ट करेगा कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को। तो हम पहले लिवोडोपा ड्रग्स के बारे में, इट इज ए प्रीकर्सर ऑफ डोपामिनर्जिक। ये प्रीकर्सर है, मतलब जब द बेबी बर्थ लेता है तो इसमें लिवोडोपा जो की मात्रा हमारी बॉडी में होती है जिससे कि वो डोपामिनर्जिक में कन्वर्ट होता है बाद में। देन आता है लिवोडोपा प्लस कार्बाइडोपा देंगे कॉम्बिनेशन के साथ, जिसमें लिवोडोपा का एक्शन है जो स्टिमुलेट करेगा बेसल गैंग्लिया को जो कि हमारा कन्वर्ट करेगा डोपामाइन में। देन कार्बाइडोपा कह रहे हैं इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है और ब्रेक डाउन करेगा लिवोडोपा को ब्लड में जाके ड्यू टू डोपा हाइड्रोम एक्सिलेज, डोपा डी हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। देन साइड इफेक्ट इसके हैं डिसरिथमिया, नोजिया, ब्लैक कलर बॉडी फ्लूइड, दीज आर द साइड इफेक्ट्स। देन हमारा आता है ब्रोमोक्रिप्टिन जिसमें कि हमारा जो इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन का, जिसमें हमारा जो मेन चीज है कि हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कम करता है। तो हम प्रेग्नेंट वुमेन्स में इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन में ले सकते हैं। द एमेंटिडीन इट इज एंटीवायरल ड्रग, एक्शन इज इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामाइन। एंटीकोलिनर्जिक्स यूज करेंगे जिसमें कि डिक्रीज द लेवल ऑफ ACTH एसिटाइल कोलिन जो कि हमारा इंक्रीज करता है डोपामिन लेवल को। इसके एग्जांपल है बेंजोट्रोपिन। इसमें हम एंटीकोलिनर्जिक बेंजोट्रोपिन के टाइम में हम अल्कोहलिक पेशेंट्स में अवॉइड करेंगे एंड ग्लूकोमा पेशेंट्स में अवॉइड करेंगे। देन आता है मायो इनिबिटर्स, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। ये मायो अमीनो ऑक्सीडेज इज एंजाइम जो कि टायरामाइन से टायरामीन होता है जो कि प्रोडक्शन किसकी करता है डोपामाइन लेवल की। इसका एग्जांपल है रेसागिलीन। इसमें हम अवॉइड करेंगे मायो इनिबिटर्स में विद लिवोडोपा बिकॉज जो पेशेंट्स में हाइपरटेंस क्राइसिस को प्रिवेंट करता है। इसमें हम अवॉइड करेंगे टायरामीन फूड जिसमें कि हमारा बनानास, पपाया, सोया सॉस, कैफीन जैसे चीजें जैसे कॉफी, टी, चॉकलेट्स ये अवॉइड करेंगे जब हम मायो इनिबिटर्स देंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में आते हैं। इसमें क्या होगा टू मेंटेन सेफ्टी प्रिकॉशंस, इसमें सेफ्टी शूज, असिस्टेंट डिवाइसेस, सिंगल पॉइंट केन वॉकर्स, टिप कवर विद रबर, जिसमें कि हमारा जो बैलेंसिंग है गेट है जो इम्पेयर्ड हो जाता है इस वजह से हम उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे ताकि उसको इंजरी ना हो। अवॉइड द पेशेंट टू अवॉइड यूज ऑफ हाई हील्स शूज, उसका हाई हील शूज अवॉइड करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे लो शूज जिसमें कि रबर सोल हो। और डाइट में हम सॉफ्ट डाइट देंगे ताकि वो इजीली स्वेल कर सके या चबा सके। देन हाई कैलोरी इंक्रीज इनटेक आउटपुट बढ़ाएंगे, हाई फाइबर डाइट। देन इसमें हम अवॉइड करेंगे विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जो कि डिक्रीज करेगा ड्रग इफेक्ट को बिकॉज क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट हमें अवॉइड करनी है। पायरोडॉक्सिन में क्या होता है यूज्ड इन TB टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस। जब हम TB की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो विटामिन B6 हम साथ में साथ देखते हैं जिसमें हमारा जो कि पेरिफेरल न्यूराइटिस को प्रिवेंट करता है, इसका ये अलग से यूज है। देन प्रोमोट इंडिपेंडेंस इन सेल्फ केयर एक्टिविटी, उसको प्रमोट करेंगे कि वो खुद स्टैंड हो, चले, थोड़ा थोड़ा करके उसको एनकरेज करेंगे। एंड अवॉइड रशिंग द पेशेंट विद एक्टिविटीज, उसको जल्दबाजी नहीं करेंगे कि तुम्हें ये करना ही करना है। देन ये था हमारा पार्किंसंस डिजीज। सो नाउ वी हैव टू मूव टू डायग्राम। इसमें पार्किंसन कंडीशंस एंड हेल्दी कंडीशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें टर्मिनल ब्रांचेस को में दिखाया हुआ है कि डोपामाइन लेवल कैसे
हमारे जो न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस होते हैं उनमें कम पाया जाता है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में हमारा मिड ब्रेन से सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामाइन रिलीज नहीं कर पाता। इस वजह से इस कंडीशंस में बहुत से डिफरेंट सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसमें हमारा मास्क फेस और जिसमें हैंड ट्रेमर्स होते हैं और शफलिंग और स्टॉप्ड गेट हो जाता है। ट्रेमर्स लेग्स में भी होते हैं, जो कि मूवमेंट में हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं पेशेंट्स को। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है, पार्किंसन डिजीज़। Thanks for watching. Today we have discussed about Guillain-Barré syndrome. Definition: it is a autoimmune disorder of peripheral nervous system जिसमें डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं मस्कुलर वीकनेस, जिसमें हमारे क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं। इट यूजुअली अकर्स 1 to 3 weeks रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन। देन वी हैव टू मूव टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी हैविंग एग्जैक्टली अननोन रीजन। देन आता है एटोन इम्यून डिसीज, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Campylobacter jejuni is the most common. Sign and symptoms: muscular weakness, जो कि स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती हैं। Weakness proceeds to upward, bowel and bladder weakness, dyspnea and ascending paralysis। इसमें मोनोप्लेजिया होता है, जो कि पैरालिसिस ऑफ सिंगल लिम्ब। पैराप्लेजिया is a paralysis of lower limb. Hemiplegia is a paralysis of half body, and quadriplegia is a paralysis of 4 limbs. And mild complication of GBS syndrome is increased respiratory failure. Diagnostic evaluation: फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री होगी रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रिक इन्फेक्शन की 2 weeks अर्लियर की, CT स्कैन्स, MRI एंड CSF एनालिसिस, देन EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम फॉर मसल वीकनेस, देन नर्व कंडक्शन टेस्ट। मैनेजमेंट: देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडमिनिस्टर्ड इम्यूनोग्लोबिन, जो कि IVIG है, जो हम एडमिनिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट। एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मा फेरेसिस, इट्स ऑल्सो अनदर मैनेजमेंट। देन आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें हम डेक्सामेथासोन देंगे। देन वी मूव टू नर्सिंग मैनेजमेंट। Firstly, we have priority basis, we have assessed the respiratory pattern and patient का airway maintain रखेंगे। Provide feeding in upright position with flex head to avoid dysphagia. Provide small and frequent meals, छोटा छोटा meals देंगे। Administer TPN total parenteral nutrition in severe dysphagia, अगर पेशेंट खाने की स्थिति में नहीं है तो उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। एडमिनिस्टर 2 to 5 लीटर फ्लूइड्स पर डे। कैथेटराइजेशंस अवॉइड करेंगे, जिससे कि UTI होने के चांसेस ना हो। प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोबिलिटी। पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज कराएंगे ताकि पोजीशंस मेंटेन रहे और प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। आइज को लुब्रिकेटेड रखेंगे ताकि जो प्रिवेंट करे ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। And be ready for tracheostomy and ventilation of patient if patient having respiratory failure. Then आता है complications. Respiratory failure is the most common complications. This also about Guillain-Barré epilepsy की definition. ये नर्व सेल में एक्टिविटी जो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि हमारे सीजर्स के एपिसोड्स आते हैं। सीजर is a proximal uncontrolled electrical discharge of neurons in the brain that interrupts normal function. Severe birth injury, जो कि मोस्ट कॉमन होता है 6 month या इन्फेंट में। देन आता है कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्ट्रोक, CVA या ब्रेन अटैक, जिसमें कि ब्लड सप्लाई जो कि ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जो उसके सेल्स अफेक्टेड हो गए, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एनी ब्रेन इन्फेक्शन। देन आता है हाई ग्रेड फीवर, जो कि मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रंस में, जो कि फेब्राइल सीजर में आते हैं एपिलेप्सी के एपिसोड्स। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो और हाइपोनेट्रीमिया भी इसके कॉजेज़ हैं। एल्कोहल विड्रॉल भी इसके कॉजेज़ हैं। देन आते हैं, हम चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में।
फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू एन इटियोलॉजिकल कॉजेज, जो भी हमने कॉजेज पढ़े हैं इसकी वजह से। ऑल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ न्यूरॉन इन द एपिलेप्टिक फोकस, मतलब जो कि न्यूरॉन्स में जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें ऑल्टरेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट आ जाएगी न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स के हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट की वजह से पार्शियल डिपोलराइजेशन होगा, जिसमें कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। उसकी वजह से पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ है उसकी वजह से जो स्टिमुलेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो कम हो जाएगा। जैसे डिक्रीज गाबा, गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। द इम्बैलेंस रिलीज ऑफ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारा एक्साइटरेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका भी इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि हमारा थ्रेशोल्ड जो कि सीजर का वो कम हो जाएगा, जिसमें कि हमारा इम्बैलेंस आ जाएगा हमारा इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस स्प्रेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रिलीज होगा, जिससे हमारा सीजर कोज होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन में चलते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर में ओनली वन हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है और जनरलाइज सीजर में होल ब्रेन आर इन्वॉल्व होता है। देन आता है पार्शियल सीजर्स के टू टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट इज सिंपल फोकल। इसमें क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल पेशेंट्स का वैसे का वैसा रहता है, पर पर्सन्स की मोटर एक्टिविटी और परसेप्शन जो कि वो कि ऑल्टर्ड हो जाते हैं। सेकंड इज़ कॉम्प्लेक्स फोकर, जिसमें पर्सन का कॉन्शियस लेवल ऑल्टर्ड हो जाता है, बाकी सिम्टम्स सेम रहते हैं। जनरलाइज सीजर, फर्स्ट आता है पेटिट मास सीजर, जिसको एब्सेंट सीजर भी कहते हैं, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियस 5 to 10 सेकंड्स होता है। सेकंड आता है एटोनिक सीजर, जिसमें मसल स्टोन और पेशेंट फॉल ऑन फ्लोर। देन थर्ड आता है मायोक्लोनिक सीजर, जिसमें सडन ऑल्टरेशन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एंड फोर्थ आता है ग्रैंड माल सीजर, जिसको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स भी कहते हैं, जिसकी कंप्लीट सीजर्स होता है 5 स्टेजेस में, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, CSF एनालिसिस, ईच इज अ कन्फर्टिंग डायग्नोसिस एंड CT, MRI, PET स्कैन्स आर द डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। देन आता है हमारा मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट मैनेजमेंट इज इमीडिएट ड्यूरिंग सीजर। इसमें हम पेशेंट्स को इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे, अगर फूड है तो पेशेंट्स के माउथ में साइड लाइन पोजिशंस देंगे ताकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकें। वेट फॉर कंप्लीट सीजर, never use sharp and other instrument during seizure to open the mouth. Medical management, first is phenytoin sodium, use all type of seizure except petit mal seizure. साइड इफेक्ट इसके गम हाइपरप्लेजिया, अटेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड से होता है। सेकंड इज कार्बामेज़ापाइन, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीजर, used in all except petit mal seizure. TOCs of petit mal seizure is ethoxyzamide. Third is phenobarbital, is a drug of choice in infant seizure. Fourth is sodium valproate, valproic acid except petit mal seizure. Fifth is MGSO4, जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मीन्स एक्लेम्शिया में दिया जाता है। Sedatives, diazepam, drug of choice of status epilepticus. Complication, first is status epilepticus. It is a state of continuous seizure, जिसमें हमारा continuous seizure आते हैं, conscious levels नहीं रिटर्न होती हैं, और it is a neurological emergency, जिसमें हमारा परमानेंट ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। और टॉनिक क्लोनिक status epilepticus is the most dangerous due to ventilatory insufficiency, because seizures इतने आते हैं इसमें कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारा कॉन्शियस लेवल पे वापस नहीं आ पाता और ब्रेन डैमेज हो जाता है। सेकेंड इज सीवियर इंजरी एंड थर्ड इज ड्यू टू ट्रॉमा। सीजर्स कंटिन्यूस आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसकी वजह से इंजरीज और इंजरी की वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट द स्टेजेस ऑफ सीजर, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज ऑरा, इसमें वार्निंग होता है या
फीलिंग ऑफ सीजर्स होती है, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। आता है टॉनिक फेज, जिसमें मसल रिजिडिटी होती है। हाइपरटोनिक फेज, जिसमें एक्सट्रीम मसल रिजिडिटी होती है और हाइपर एक्सटेंशन होता है। देन आता है क्लॉनिक फेज, जिसमें कन्वल्शंस होते हैं। एंड देन आता है पोस्टिक्टल फेज, जो कि रिकवरी फेज होता है। इन स्टेटस एपिलेप्टिकस में पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे और वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाएंगे। रिकवरी पोजीशन, जिसमें हम एल्बोज और नीज को फ्लेक्स करेंगे, अपसाइड नेक करेंगे ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट्स ना हो, ओपन करेंगे, एनी फूड होगा तो उसको रिमूव करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। This is all about Shija. Welcome to the nursing tricks. Basics are the basics and you can't skip the basics. Today we have to discuss about head injury. So let's begin. Here we are discuss about definition, causes, types, clinical manifestation, diagnostic evaluation and management. So let's begin. Definition: any injury to the scalp, skull, or brain includes alteration in consciousness. Head injury leads to hematoma formation, means accumulation of blood. Second, increase ICP, intracranial pressure. In this injury involve brain also. Third is meningitis. There is an inflammation of meninges. There are three layers of meninges: pyometer, echinoid matter, and duromater. Fourth is encephalitis, is the inflammation of brain. Then fifth is alternation of behavior. Sixth is seizures, any disturbance in the electability of brain. Seventh is epilepsy, is the recurrent episodes of seizures is called epilepsy, called chronic seizure. Next is causes. First is road traffic accident. This is the most common cause. Second is blunt trauma. Third is fall from height or in depth. Fourth is gunshot injury. We move to types. There is two types: open head injury and closed head injury. First of all, open head injury. The open wound will appear on the head. It is of two types: laceration and fracture. First is laceration. It is a superficial injury of brain. Second is fracture. Fracture having four types. First is linear fracture. In this, only line is present and bony parts are not separated. Second is depressed fracture. In this fracture, the bone is broken down and some particles of bone are depressed on the brain. Compound fracture. It is an open fracture. In this fracture, the bone parts are visible outside. Fourth is communicated fracture. In this fracture, crush injury occurs and the bone is divided into many small particles. Closed head injury. In this type, open wound is not present but the internal injury occur. Then types. First is concussion. It is a minor injury. Only the jarring of brain occurs. The level of consciousness may be altered. Neurons are not damaged, so permanent symptoms will not appear. Second is contusion. It is a major injury. The consciousness may be altered or lost. Neurons are damaged, so the permanent symptoms will appear. Symptoms depends on the location of neural damage. Third is hematoma. Blood is accumulation in the tissues. In these types, four types in this. First is epidural hematoma. This is the most dangerous types of hematoma because it occurs due to arterial rupture. Second is subdural hematoma. In this, there is a blood collection in the dura and arachnoid space. Third is subarachnoid hematoma. And fourth is intracerebral hematoma. It occurs by venous rupture. So these are the four types of hematoma.
Then we move to clinical manifestations. First is persistent and localized pain at fractured site. Second is swelling at fractured site. Third is increased ICP, involves skull and brain injury. Next is fracture at base of skull. In this case, the hemorrhage occurs through ear, around the eye, pharynx and nose. There is a specific sign which is first is raccoon eyes. In these, dark circles around the eye. Next is CSF rhinorrhea, which is fluid drain out from nose. It's CSF. Next is CSF otorrhea. In this case, any discharge from the ear seen, which is CSF. Next is Bettel sign, which is ecchymosis on mastoid process. Ecchymosis means bluish discoloration, bleeding under the skin. Next is hemotympanum, which is presence of blood in the middle ear, which is presence behind the eardrum. Next is bump, the protected portion of skin that results from injury. Next symptoms is systemic hypertension in case of gunshot injury. Then we move to diagnostic evaluation. First is history collection and physical examination. Second is skull X-ray is the most important investigation. Then CT scan. Then we have to check the GCS, Glasgow Coma Scale, in case of brain injury. Next is Hellering sign. In this case, we have to check with the Gillespie's otorrhea and rhinorrhea, which is discharged from the nose and ear, where we have checked the CSF presence. Next is beta transferrin test, which is confirmatory test that the CSF present in blood, mucus and tear. It is a specific marker. We move to management. If wound present in scalp, sterile clean dressing. Medical management. If wound present, then antibiotics prevent infection, then anti-inflammatory drugs, then analgesics, anticonvulsants, it's phenytoin to prevent seizures. Then we move to surgical management. Burr hole surgery. It's a treatment of subdural hematoma. In this, craniotomy occur. Surgical removal of cranium bone. In this, bone flap which is put into the abdominal cavity. It's used to reduce ICP, intracranial pressure. We move to nursing management. Then head of the bed elevated 30°. Oxygen administration. Avoid morphine sulfate. Avoid sneezing, coughing, vomiting and neck hip flexion. Maintain PaCO2 level. It's 30 in 32 between. Sectioning never more than 10 seconds. Intake initially 1000 ml. Hope you understand the video.